Good morning, friends and students. Again, I welcome you to my YouTube channel, Dr. Prakash Chandra Jha. Area is motivation. Topic is words. Now, the question here is that in most of the cases, what is it here? It is words. Words has got meaning. Meaning is really supposed to be fatal. Meaning is really supposed to be battle. Meaning is almost all the things you can say. T.S. Eliot had simply said in one of the sentences, tear out your emotion, there is no problem. Somebody tells you, hello, my dear friend. You are not objecting, you simply tell, okay, no problem, wait not here. But sometimes you can object, am I your friend? What made you just to be just my friend, you can say. Did you ever see your status? Is it not here? Maybe because of that reason, that particular person actually getting a sort of battle in the mind, maybe because of that reason, that person actually just make a sort of, just you can say, of that conflict and out of the conflict. Thing is that not actually just settling, but thing is actually making it to be really supposed to be arousing, you can see. For example, this morning one of the gentlemen simply told me, Londa, it is late. Well, maybe because of the reason I had simply just born this much of the very thing. This is maybe jeans or maybe just a spotting like that. This is his opinion. Now the question here is that if I take it seriously, certainly the fight will be there. If you take it lightly, there is no problem, because here. What is what? What has got meaning? And meaning actually makes a man just indulge in the thing, otherwise there is nothing at all. Sometimes somebody tells, hello, you are God. You are actually very happy. But sometimes some person tell you to be devil. You are becoming unhappy, or you become somewhat just furious with a view to just attack at the man, you can say. Just let me take you towards Arunachal Pradesh in one of the school, government higher secondary school, along, you can see. In course of discussion, one of the teacher, one day simply made a fun with that of other teacher when he just came after just taking the classes. He simply tells it over there, dear gentlemen, one of the DOG Sahab is waiting for you just in front of the gate. That man didn't actually made it to be really supposed to be concentrated. What does the person tell? He went outside. He saw nobody at all, because here. After then he started just inquiring the thing. What food did you send me there? Nobody is there. Somebody is there. DOG Sahab. DO is standing for dog. So now the question here is that who bothers for this much of thing? Lightly person takes when certainly then he became furious. Furious in the sense he wanted to quarrel like that. तो मेरे दोस्त, मैं सीधा कहना चाहता हूँ, शब्द का एक मतलब होता है. मतलब अगर आपके मतलब का होता है तो आगे आप उसे लाइटली लेते हो. मतलब अगर आपके मतलब का नहीं होता है तो वही आपको झगड़े के लिए बाध्य कर देता है. अब महाभारत को ही ले लो ना. द्रौपदी ने केवल मजाक किया था दुर्योधन से. अंधे का बेटा है, उसे दिखाई नहीं देता, अरे वाह, तालाब में गिर जाता है ना. और वह चूंकि तालाब ऐसा बना हुआ था, और कह सकते हैं सिचुएशन ऐसी थी, वो लगता था मिसमैनेजिंग जैसी, और नतीजा क्या होता, महाभारत की लड़ाई हो जाती है. ठीक है. उसी तरह आप अपने परिवार में जहां भी तहां भी आप तो कभी सुनते नहीं हो आदमी ने क्या कहा, और उसी हिसाब से उसके आगे भागते रहते हो. अरे छोड़ो ना भाई. अब मैं गांधी का भी उदाहरण देता हूँ. गांधी को लोग गाली दे रहे थे, ठीक ना. और नतीजा क्या हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि पेपर में लिख करके उसमें पिन भी हुआ था, तो गांधी ने पेपर उसको हटा दिया, उसके बाद पिन रख लिया. पिन जब पूछा क्या पिन क्यों रखा है इसको, ये काम का चीज है. अब दूसरी बात, जैसे मान लो किसी को कुछ देते हो, अगर वो नहीं लेता है तो वो लौट के कहाँ जाता है, आपके पास ही जाता है. आप वही दोगे जो आपके पास है. आप गाली दोगे इसलिए कि चूंकि आपके पास गाली है. ताली दोगे तब जब आपको ताली बजाने आता है, और माली दोगे तब जब आप जानते हो फूल कैसे पैदा होता है, और कह सकते हो हाला हाली तब दोगे जब आप खुश होते हो, खुश मिजाज होते हो. और आदमी के कुछ गुण हैं, कुछ लक्षण हैं, और वह क्या है, निगेटिव पॉजिटिव दोनों है. जब अपने फायदे की बात होती है तो वह बड़े मतलब बहुत खुश होता है. जहाँ लगता है दूसरे किसी का फायदा होता है तो न जाने कहाँ केकई बन जाती है, ना कुबड़ी बन जाती है, जो भी बन जाती है. नतीजा यह होता है कि ढाक के तीन पात वह बेचारा अपनी बर्बादी करता या नहीं करता, लेकिन इतना जरूर है, जो आदमी दूसरे का भला नहीं चाहता उसका भला कभी नहीं होता है. अगर आपको लग रहा है कि आदमी भला हो रहा है तो वह क्षणिक है, वो परमानेंट नहीं होगा. अब यहाँ भला और बुरा क्या होता है, कुछ आपको मिल गया तो भला हो गया, और कुछ आपको नहीं मिला तो बुरा हो गया. अब जैसे कोई आदमी रोज आपको मुफ्त का खाना खिलाता है और आपको डिपेंडेंट बना देता है अपने ऊपर, एक दिन खाना नहीं देता है,
वो आदमी अच्छा करता है बुरा करता है। वो आदमी जिसने आपको खाना नहीं दिया और आपकी मदद नहीं की, हो सकता है कुछ देर के लिए वो बुरा होगा, लेकिन वो आपको सही रास्ता दिखाता है। बिना मेहनत किए बिना काम किए अगर खाना खाते हो तो आप अपराधी हो। और मैं प्रेमचंद का लाइन फिर से कहता हूँ कि एक मैं मजदूर हूँ, अगर मैं खाना खाता हूँ बिना काम किए तो मैं अपराध करता हूँ। इसी तरह मेरे दोस्त, मुफ्त कुछ नहीं होता है, उसके लिए कुछ न कुछ लगता है। आपका नहीं लगा, किसी और का लगा होगा, किसी और का लगा होगा, लेकिन उसको मुफ्त हड़प रहे हो और वह कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। आप जब किसी को कोई बात कहते हो सकता है आपको चोट लगता है, लेकिन वह चोट भी आपको किसी न किसी वैसे मार्ग पे ले जाता है जहाँ पर आपका कह सकते हैं डेस्टिनी निर्धारित है, जहाँ पे आपकी मंजिल निर्धारित है। और कोई भी काम बिना मतलब का नहीं होता है, और जो भी होता है लाइफ में अच्छा ही होता है। और गीता का वो लाइन है वो भी अच्छा ही है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहने का मतलब अपना काम करते जाओ, लीव द पीपल, let the people speak, no problem. He is giving you potential, he is giving you energy so that you can move towards the very area from where everything will be just nice, you can share. So मेरे मित्र, हमने छोटा सा एक टॉपिक लिया, वर्ड्स। ये वर्ड ही है जो लोगों को बनाता है, ये वर्ड ही है जो लोगों को बिगाड़ता है। जो आपको अच्छा लगता है उसको आप रख लो, जो अच्छा नहीं लगता है उसको अलग कर दो। वर्ड का कोई दोष नहीं, यह मतलब का दोष है। मतलब के हिसाब से लोग बनता है, बिगड़ता है, जुटता है, हटता है, बनाता है, बिगाड़ता है। यही शब्दों के साथ टी एलियट का वह लाइन याद, टी.एस. एलियट का वह लाइन याद रखिए, टीयर आउट योर इमोशन, देयर इज नो प्रॉब्लम। किसी ने कहा फ्रेंड ओके, किसी ने कहा डॉग ओके, किसी ने कहा सुअर फिर भी ओके, किसी ने कहा गीदड़ फिर भी ओके, किसी ने कहा लायन फिर भी ओके। जब ये ओके होगा, स्टेबिलिटी होगी। जब रिएक्ट नहीं होगे तो आदमी अपने आप एक्ट करते करते रिजेक्ट हो जाएगा और आपके मैदान को छोड़ के भाग जाएगा। वो इसलिए करता है ऐसा ताकि आप वह नहीं करो जो वह नहीं सकता है, वह चाहता है कि आप वही करो जो वह करता है ना। लेकिन क्यों भाई, ये 5 उंगली बराबर है क्या? क्या मैं जो हूँ वह दूसरा बन सकता हूँ क्या? दूसरा क्या मेरा बन सकता है क्या? नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पे ध्यान दीजिए, उसके मतलब पे ध्यान मत दो। जिस दिन मतलब पे ध्यान देने लगोगे तो एवरी वर्किंग डॉग का जवाब नहीं दिया जा सकता। हर भूखते हुए कुत्ते के पीछे अगर आप जवाब दोगे तो आपका मकसद पीछे रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाओगे। कभी हाथी को आपने देखा है? कुत्ते भौंकते हैं, रुकता है नहीं, वो आगे बढ़ता ही जाता है। उसी तरह वह आदमी जिसके लाइफ में कुछ एम है, कुछ ऑब्जेक्टिव है, वो कभी इन छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देगा तो उसका पैर वहीं रुक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। मैक्सिमम क्या हो सकता है? मौत होगा। मौत तो सबका होगा, जो किसी को गाली देता है उसका भी, जो किसी को ताली बजाता है उसका भी है। तो इसकी चिंता छोड़ो। विश यू ऑल द बेस्ट। और आप सबों को भी मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ हैप्पी टीचर्स डे। 8 नोट सर, दिस मच। थैंक यू वेरी मच।